اس کی ہمت کیسے ہوئی آغا جان یہ غلیظ حرکت کرنے کی؟ کیوں کیا اس نے میری بہن کے ساتھ ایسا؟ بولیں آغا جان، جواب دیں مجھے، آپ نے ہی یہ نکاح کروایا تھا نا، اور اب آپ ہی جواب دیں گے مجھے۔ لاؤنج میں اس وقت سب افراد موجود تھے گھر کے۔ سلطان علی تو یہ خبر سن کر بستر سے لگ کر رہ گئے تھے۔ رات سے صبح ہو گئی اور کوئی بھی اس رات کو سو نہیں پایا تھا۔ خوشی کے مارے شائنہ اور طوبہ بیگم کی نیندیں بھی اڑن چھو ہو چکی تھیں۔ منتہا کی بربادی پر وہ دونوں اپنی خوشی رات ہی منا چکی تھیں۔ ایک جانب کھڑی دونوں ماں بیٹیاں منتہا کی ہوئی بربادی کا مزید تماشا دیکھنا چاہ رہی تھیں۔ ہمارے پاس آپ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، ہم تو نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ آغا جان کا خفت بھرا لہجہ آفاق کی آنکھوں کی نمی کا باعث بنا، لیکن وہ مرد تھا، رونا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ اگر اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس بھی اس کی بہن کو چھوڑنے کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور دھماکہ آفاق نے جیسے ان کے کمزور وجود پر کیا۔ نہیں بیٹا، آپ یہ قدم مت اٹھائیے گا۔ آغا جان کو اپنا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کوئی سمجھاؤ ان کو، سمجھ نہیں آ رہا۔ آغا جان، مجھے تو لگتا ہے کہ منتہی کی کوئی غلطی ہوگی۔ حاشر نے یوں ہی تو طلاق نامہ نہیں بھیج دیا۔ طوبہ بیگم نے ایک طنز کا شدید وار کیا تھا۔ طوبہ بیٹی، آپ چپ ہی رہیں تو اچھا ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور آپ اب پرائی ہو چکی ہیں۔ ہمیں کسی کی بھی رائے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آغا جان کا منہ توڑ جواب طوبہ بیگم کا رنگ اڑا گیا۔ سرخ چہرے کے سنگ وہ بکتی جھکتی کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ امی حاشر مجھے چھوڑ کر، امی حاشر۔ نیند میں بھی وہ داسی اس ستمگر کو پکار رہی تھی۔ بخار کی شدت تھی کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھتی زوبیہ بیگم کی آنکھیں پرنم تھی۔ رات منتہا کی بے ہوشی نے ان کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ اپنی بچی کو یوں صدمے سے بے ہوش ہوتا دیکھ کر کلیجہ منہ کو آیا تھا ان کا۔ تکلیف حد سے زیادہ تھی، لیکن اس کم ظرف کے لیے ایک بھی نفرت بھرا لفظ منہ سے نہیں نکالا تھا انہوں نے۔ امی حاشر، بس کر میرا بچہ۔ پھوٹ کر روتی انہوں نے منتہا کو سینے میں بھینچا تھا۔ میری بچی، میری غلطی ہے کہ میں تجھے صبر کا کہتی رہی، ایک بار تو تیری بات سن لیتی۔ کیسی بری ماں ہوں میں جو اپنی بیٹی کو تکلیف میں دھکیلتی رہی۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میری وجہ سے ہوا یہ سب، میں تیری خوشیوں کی قاتل ہوں۔ آنسو قطرہ کرتا نکل کر منتہا کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ ہاتھ کو اٹھا کر اس نے زوبیہ بیگم کے منہ پر رکھا۔ نہیں امی، مت روئیں، آپ کی کوئی غلطی نہیں، میں ہی غلط تھی جو ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ ہمت یکجا کر کے وہ بولی اور دوبارہ بستر پر گری تھی۔ نازک جان ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ صدمہ ہی ایسا تھا کہ اگر وہ ہمت کرتی بھی تو اس ستمگر کا ظلم ساری ہمت ختم کرتا جا رہا تھا۔ او موم، جسٹ چل کریں، ایسے چھوٹے موٹے خطاب تو ملتے ہی رہتے ہیں۔ آپ بس شام کے تماشے کے لیے خود کو ریڈی کریں اور سوچیں کہ اس کو کیسے انجوائے کرنا ہے۔ بالوں کی لٹ کو انگلیوں پر گھماتی وہ طوبہ بیگم پر اپنے زہریلے مشورے آزما رہی تھی۔ چپ کر جاؤ شائنہ، اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری بکواس میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر دے۔ جاؤ یہاں سے۔ طوبہ بیگم کی ڈانٹ سن کر وہ برے منہ بناتی کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی جب لاؤنج میں شور کی آواز گونجی۔ او موم، غصہ چھوڑو، دیکھو حاشر آ گیا ہے۔ اب منتہا سلطان کی بربادی کا تماشا دیکھنے کا زیادہ مزہ آئے گا۔ تیزی سے وہ لاؤنج کی جانب بڑھی۔ طوبہ بیگم بھی غصہ چھوڑ کر چہرے پر مصنوعی دکھ سجائے نیچے کی جانب آئیں، جہاں حاشر مجرموں کی طرح سر جھکائے اکڑ کر کھڑا تھا۔ لاؤنج میں حاشر کی آواز سن کر پورا جسم جیسے سماعت بنا تھا۔ بیڈ سے اتر کر وہ پیپر اٹھائے، تیزی سے نیچے کی جانب بڑھی جہاں حاشر بیچوں بیچ کھڑا آغا جان کے غیظ و غضب کا شکار تھا۔ ننگے پاؤں، ملگجے بکھرے حلیے میں سیڑھیاں اترتی وہ تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ سب کو پیچھے ہٹائے وہ حاشر کے روبرو آئی۔ حاشر جو آغا جان کی جانب متوجہ تھا، منتہا کو سامنے دیکھ کر چہرے پر تنفر واضح ہوا تھا۔ حاشر، یہ کیا ہے؟ میں ان پیپرز کو نہیں مانتی۔ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی نا؟ یہ جھوٹ ہے نا حاشر؟ بتائیں سب کو، یہ جھوٹ ہے، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ دیوانوں کی طرح وہ حاشر سے سوال کرتی سب کی آنکھوں کو نم کر گئی۔ فردوس بیگم تو نظر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ حاشر، آپ بول کیوں نہیں رہے کچھ؟ بتائیں سب کو کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بازو پر ہاتھ رکھ کر اس نے دوبارہ فریاد کی، لیکن وہ اسپاٹ چہرہ لیے بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ بولیں حاشر، اب چپ کیوں ہیں؟ جواب دے میرے سوال کا، سب کو بتائیں کہ یہ جھوٹ ہے۔
आगा जान ने तो रुखसती का फैसला भी कर लिया है और आप खामोश खड़े हैं। हाशिर का सदमा जैसे मुंतहा के दिमाग पर असर कर गया था। ये पेपर्स बिल्कुल ठीक है मुंतहा सुल्तान, और ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, हकारत से भरपूर लहजे में कहकर हाशिर ने एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर दूर धकेला था। बेसाख्ता वो ज़मीं बोस हुई थी। हाशिर! यकदम आगा जान ऊंची आवाज में चिल्लाए और आफाक भी आगे बढ़ा। अपने हाथ काबू में रखें वरना भूल जाएंगे हम कि आप इस घर के बड़े बेटे हैं। नहीं आगा जान, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज सिर्फ हाशिर बोलेंगे। बोले हाशिर, ये पेपर झूठ है, बोले ना। सवाल करते हुए वो रोई थी। जूबिया बेगम ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें भी रोक दिया। ये मेरे और हाशिर के बीच का मामला है, इसमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जूबिया बेगम अपनी जगह खड़ी रह गई। मुंतहा अपने रूम में जाओ, आगा जान हाशिर से बात करेंगे। आफाक में मजीद ये सब देखने की सकत नहीं थी। ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर उसने मुंतहा को वहां से भेजना चाहा। आफाक का बस नहीं चल रहा था कि हाशिर को जान से मार दे। भाई, मैंने कहा ना कि ये मेरा और हाशिर का मामला है, कोई बीच में नहीं आएगा। क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा? मुंतहा भी जवाबन ऊंची आवाज में चिल्लाई। आगा जान ने आगे बढ़कर आंख के इशारे से आफाक को रोका था। अब जवाब दें हाशिर, बताएं मुझे। गाल पर हाथ रखकर उसने हाशिर का रुख अपनी जानिब मोड़ा, लेकिन उसने फौरन हाथ झटका। मुंतहा, ये पेपर्स बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। जबड़े भींच कर उसने सख्ती से कहा। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं नहीं मानती इन पेपर्स को। पल भर में उसने उन पेपर्स को चंद टुकड़ों में तकसीम किया और एक जानिब फेंका। ये है इनकी हकीकत। नहीं मानती तो बस नहीं मानती मैं। ढिठाई का मुजाहिरा करती वो हाशिर को मजीद गजब दिलवा गई। कितनी बेशरम हो तुम, क्या जरा शर्म लिहाज बाकी नहीं तुम में? क्या ड्रामा कर रही हो? तुम्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए ना कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि तुम मेरे भाई से शादी कर सको। धड़ धड़ जैसे ट्रेन उस पर से गुजरी। आंखें हैरत से फटने के करीब हुई। तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक जैसी हो मुंतहा सुल्तान। मेरे चाचू को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मेरी खाला के हक को खा गई ये औरत। मेरी खाला की जान ले ली तुम्हारी माँ ने। और सच जानना चाहती हो ना तो पूछो अपनी माँ से, कैसे इसने मेरे चाचू को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। और आज तुम भी यही काम कर रही हो, बल्कि कर चुकी हो। जूबिया बेगम का हाथ बेसाख्ता दिल पर गया था। इतना गंदा इल्ज़ाम, वो भी अपने लाडले भतीजे के मुंह से। जूबिया बेगम को सदमे से दो चार कर गया। मेरे भाई को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उसे अपना असीर बना लिया। भाई, सदमे से गूंगा शर चिल्लाया। क्या बोल रहे हैं आप होश में तो हैं? जो मुंह में आ रहा है बकते चले जा रहे हैं। आगे बढ़कर अशर ने हाशिर का गिरेबान पकड़ा। देखो, यही चाहती थी ना तुम? आ गया तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द। एक झटके में उसने अपना गिरेबान छुड़वाया और अशर को दूर धकेला और मुंतहा की जानिब मुड़ा। अरे, तुम जैसी लड़कियों से तो अच्छी वो तवाइफ ज़ादियाँ होती हैं जो कम अज़ कम नाजायज़ रिश्ता भी रखें तो डंके की चोट पर रखती हैं, लेकिन तुम तो मेरे सगे भाई के साथ। तुफ है तुम पर मुंतहा, तुफ है। कुछ तो लिहाज कर जाती। हाशिर की जुबान आज शायद मुंतहा की जान लेने वाली थी। क़यामत की घड़ी क्या होती है मुंतहा को आज पता चला था। हाशिर, खुदारा चुप कर जाएं, झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी रूह नहीं कांपी इस रकीक इल्ज़ाम को लगाते हुए मुझ पर? रहम नहीं आया आपको इतनी बेएतबारी दिखाते हुए, इतनी नफरत? हाशिर, मैं आपकी बेइतनाई को मोहब्बत समझती रही, लेकिन ये तो हमेशा से ही नफरत की सूरत थी। आपने तो मुझे खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा हाशिर। अब भी झूठ पर झूठ बोल रही हो। कितनी बेशरम हो तुम। क्या ये तस्वीरें भी झूठी हैं? देखो अपने कारनामों को। उसने मोबाइल मुंतहा के सामने किया। तस्वीरें देखकर मुंतहा भी हक्का बक्का रह गई। ये झूठ झूठ नहीं। ये कांपते हाथों से उसने मोबाइल पकड़ा। मारिया, वो तेजी से वो मारिया की जानिब बढ़ी। मारिया, झूठ है ना ये? हैरत से फटी थी मारिया की आंखें भी उन तस्वीरों को देखकर। भाई, ऐसा कुछ नहीं। और ये तस्वीरें आपके पास कैसे आईं? मारिया ने सवालिया अंदाज में हाशिर की जानिब देखा। मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है कि ये किसने मुझे भेजी हैं, लेकिन ये तस्वीरें सच्ची हैं। नहीं हाशिर, ऐसा कुछ नहीं है। खुदारा मेरी बात तो सुने। अब कह दो ये भी झूठ है। एक और कारी वार हाशिर ने मुंतहा पर किया। लानत है तुम पर मुंतहा सुल्तान, झूठ पर झूठ और बस झूठ, लेकिन अब मजीद नहीं। मैं हाशिर अली हमदानी बकायमी होशो हवास तुम्हें यानी मुंतहा सुल्तान को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
यकदम सब पर सख्ता तारी हुआ। पल भर में हाशिर ने मुंतहा को आसमान से ज़मीन पर पटका। नहीं, थकन ज़दा सी वो ज़मीन पर बैठी। ज़मीन आसमान जैसे साकित महसूस हुए। हाँ मुंतहा सुल्तान, मैं तुम्हें। आगा जान के भारी हाथ ने हाशिर की बोलती बंद की। बहुत बकवास कर ली हाशिर हमदानी आपने। इतना गंदा, इतना गंद, इतना जहर कैसे भर लिया अपने अंदर। लानत तो आप पर है जो इन झूठी तस्वीरों पर यकीन कर रहे हैं। लानत तो आप पर है कि आप बेबुनियाद तलाक दे चुके हैं। लानत तो आप पर है हाशिर अली हमदानी कि एक फरिश्ता सिर्फ औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप सच सुने, मैं बताता हूँ सच। आपकी खाला खुद सुल्तान अली को छोड़कर शादी की रात भाग गई थी। और किसने ये सच्चाई बताई आपको? आपके दिल में ये जहर किसने भरा? किसका बोया हुआ खन्नास है ये? नाम बताएं हमें, हम भी तो जाने कि कौन आपका इतना बड़ा हमदर्द पैदा हो गया अचानक से। कॉर्नर पर खड़ी तूबा बेगम के माथे पर पसीना चमका था। ये सारा जहर उन्हीं की करम नवाजी थी। सख्ती से उन्होंने शाइना का हाथ थामा था। शाइना ने भी हाथ दबाकर तूबा बेगम को हौसला दिया। आपकी खाला किसी और को पसंद करती थी। ऐन शादी के दिन वो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। जूबिया बेगम ने तो ख़ानदान की इज्जत का भरम रखकर शादी के लिए हाँ की थी उस रात। जूबिया बहू तो न जाने सुल्तान की किस नेकी का सिला है। अपनी खाला से अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो सच भी पूरा जान लेते, कच्चे कानों से सुनकर यकीन न करते। ज़मीन आसमान जैसे हाशिर को घूमते हुए महसूस हुए। जूबिया बेगम तेज़ी से मुंतहा की जानिब आईं जो सख्ता ज़दा बैठी ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। आफाक के सब्र का पैमाना भी लबरेज हुआ। आगे बढ़कर उसने पै दर पै वार हाशिर के मुंह पर किए। घटिया इंसान, तेरी वजह से मेरी बहन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। इतना गंदा इल्ज़ाम लगाते तुझे मौत ना आई? रुक जाएं भाई, हिम्मत यकजा किए। स्पाट चेहरे के संग वो उठ खड़ी हुई और आफाक को एक जानिब किया। आगे बढ़कर हाशिर का गिरेबान थाम कर उसने सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। आज दूसरी मर्तबा तवाइफ कहा है, दूसरी मर्तबा घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना मुझ पर आपने, गाली दी है ना मुझे। ये गाली तुम्हें भी लगेगी। बद्दुआ है मेरी कि तुम्हारा किसी तवाइफ से सामना हो। बद्दुआ है मेरी कि तुम भी तड़पो, कुर्लाओ। बद्दुआ है मेरी कि सारी ज़िंदगी सुकून के लिए तरसो। बद्दुआ है मेरी कि तुम्हें कोई खुशी रास ना आए, सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारो तुम। मुंतहा सुल्तान आज तुम्हें बद्दुआ देती है हाशिर अली हमदानी। तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं तुम्हें आज हर रिश्ते से, हर ताल्लुक़ से आज़ाद करती हूँ। मर गई मुंतहा सुल्तान की मोहब्बत। कत्ल कर दिया तुमने आज तमाम रिश्तों का। सारी मोहब्बत कचरे में चली गई हाशिर अली हमदानी। दुनिया के लिए इश्क दुआ की मानिद होता है, लेकिन ये इश्क मुझे बद्दुआ की सूरत में नवाजा गया। और शायद ये बद्दुआ मुझे इनाम के तौर पर दी गई, क्योंकि मैं इश्क में हद पार कर गई थी। और हद से बड़ी हर चीज़ बर्बादी ही लाती है। अच्छा हुआ तुमने मुझे मेरी औकात बता दी हाशिर। कम अज़ कम मैं अब खुश फहमी में ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। दुआ करना हाशिर अली हमदानी कि दोबारा ज़िंदगी में हमारा आमना सामना ना हो। आज से मेरी यही दुआ है कि तुम मुझे कभी नज़र ना आओ। और जिस दिन ये सामना हुआ ना, उसी दिन मौत को गले लगा लूँगी। हर ताल्लुक़, हर रिश्ता आज मैं ख़त्म करती हूँ। मैं मुंतहा सुल्तान आज हाशिर अली हमदानी से अपना हर ताल्लुक़, हर वास्ता ख़त्म करती हूँ। सुन लिया आप सब ने? इस हमदानी से अपना हर ताल्लुक़, हर वास्ता ख़त्म करती हूँ। इस शख्स का मेरे माँ बाप, मेरे भाई और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहा। जिस शख्स को भी हाशिर अली से रिश्ता रखना है ना, उसे फिर मुंतहा सुल्तान से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। सबको सख्ते के आलम में छोड़कर हाशिर अली की ज़ुबान पर कुफ्ल डालकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। मैंने तो वो खोया जो मेरा था ही नहीं, लेकिन उसने वो खोया जो सिर्फ उसी का था। हाशिर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना गिर जाओगे। इन छोटी 2 टके की तस्वीरों को देखकर तुमने यकीन कर लिया। कुछ तो सोचा होता हाशिर कि ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, तुम किसी मौके की तलाश में थे और वो मौका आज तुम्हें मिला तो तुमने सोचा कि इससे फ़ायदा उठा लिया जाए। सलमान अली के अल्फाज ने हाशिर को नज़र उठाने के काबिल ना छोड़ा। लाउंज में उस वक्त सलमान अली, फिरदौस बेगम, आगा जान और अबी जान मौजूद थे। आपने तो एक बार अपनी बहन का भी नहीं सोचा हाशिर भाई कि आपके इस फैसले से मेरी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, और क्या पड़ेगा। अगर वो शख्स भी मुझे आपकी तरह तलाक दे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा।
हाँ, मेरी इज्जत पर ज़रूर धब्बा लगेगा। आपको तो कोई परवाह नहीं कि आपकी बला से कोई जिए या मरे। आप एक निहायत खुदगर्ज़ इंसान हैं। काश मैं आपकी बहन ही ना होती। अपनी माँ जाई के मुँह से ऐसे अल्फाज सुनकर खुद को ज़मीन में गड़ता महसूस कर रहा था। आप एक निहायत खुदगर्ज़ इंसान हैं। काश मैं आपकी बहन ही ना होती। अपनी माँ जाई के मुँह से ऐसे अल्फाज सुनकर खुद को ज़मीन में दफ़न करना चाहा था उसने। भाई, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आपका भाई हूँ। आपकी इज्जत थी मुनतहा, जिसे आपने सरेआम नीलाम कर दिया। घना साया थे, लेकिन आपने तो उसके लिए कड़ी धूप साबित होकर दिखाया। मेरे लिए वो मारिया जैसी थी। एक मर्तबा तो हमारे रिश्ते का सोचा होता, एक मर्तबा तो अपनी सोच को मलामत करते। आपने तो मुझे उसके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। गाली दे दी हमारे पाकीज़ा रिश्ते को। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर अंदाज़ा होता कि इतना गंदा इल्ज़ाम मेरे सर आएगा तो मैं यहाँ आना ही कैंसल कर देता। और तस्वीर का सच तो अब भी मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई सफाई, कोई वजाहत आपके दिमाग के फतूर को ख़त्म नहीं करेगी। अशर मज़ीद कुछ कहे बगैर वहाँ से ऊपर की जानिब बढ़ गया। हाशिर अली हमदानी, मैं आपको अपनी जायदाद, अपने नाम, अपनी धन दौलत से आग करता हूँ। आज के बाद मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। निकल जाए मेरे घर से, निकल जाइए मेरे घर से। आपकी इस घर में कोई जगह नहीं। एंड फरदौस बेगम, कान खोल कर सुन ले, अगर आपने हाशिर से कोई ताल्लुक़ या वास्ता रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। फिरदौस बेगम उनके इतने सख्त फिरदौस बेगम उनके इतने सख्त फैसले पर यकलख्त कांप गई थी। माँ का कलेजा मुंह को आया, लेकिन उसकी गलती बल्कि गुनाह काबिल माफ़ी ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता सब हाशिर को अकेला छोड़कर अपने कमरों की जानिब बढ़ गए और वो हारे हुए ज्वारी की तरह लाउंज में खड़ा रह गया। सब रिश्ते, सब सहारे आज हाशिर अली से रूठ चुके थे। इन रिश्तों को ख़त्म करने वाला भी तो वो खुद ही था। अगली ज़िंदगी हाशिर को जैसे अंधेरों में घिरी नज़र आ रही थी। अपने माँ बाप, बहन भाई, सब वो अपनी अना में हार गया था और ख़सारा उसके हिस्से में आया। ये ख़सारा ऐसा था कि जिसका कोई नेमुल बदल ना था। किस्मत के न जाने किस मोड़ पर हाशिर अली हमदानी को दोबारा इस हवेली में लौटना था, लेकिन उस वक्त उसके लिए हवेली में कोई जगह बाकी नहीं बची थी। 1 साल बाद वक्त का काम गुजरना था, अच्छा या बुरा गुजर गया और मुंतहा सुल्तान का भी वक्त गुजर चुका था। 1 साल बीत चुका था। मुंतहा सुल्तान का दिल तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो सितमगर उसे बेगुनाह होने के बावजूद इतनी बड़ी सज़ा देगा। लेकिन अपने मुर्दा हुए दिल के संग ही अब उसने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी। मर तो हाशिर हमदानी भी हवेली वालों के लिए गया था। उसका नाम, उसका जिक्र गोया उस हवेली में ममनू हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। किसी को भी शायद उसकी ज़ात से कोई सरोकार नहीं रहा। अपनी नफ़रत वो ऐसे सबके दिल में भर कर गया था कि आज कोई शख्स उसको अच्छे तो क्या, बुरे लफ्ज़ों में भी याद करना गवारा न कर रहा था। अशर भी अगली सुबह बिना बताए, बिना किसी से मिले वापस इंग्लैंड लौट गया। भाई का दिया ज़ख्म इतना गहरा था कि शायद ही वो कभी यहाँ का रुख कर पाता। क्या कर रही हो मुंतहा? कमरे में बैठी वो कुरान पाक पढ़ने में मगन थी जब मारिया उसके कमरे में दाखिल हुई। कुछ नहीं भाभी, बस वो कुरान पढ़ रही थी। क्या कोई काम था? सफ़ेद शलवार सूट में उजला चेहरा कुछ और रोशन लग रहा था। हाँ, वो तुम्हें अम्मी बुला रही थी, कह रही थी कि खाना टेबल पर सेट कर दो। खाना रेडी है बिल्कुल। और जानती तो हो कि आगा जान तुम्हारे बिना निवाला भी हलक से नहीं उतारते, और जब तक तुम टेबल सेट ना करो वो वहाँ आते भी नहीं। नरमी से कहते उसने मुंतहा की जानिब देखा। ओह सॉरी भाभी, मैं भूल गई थी। बस आज एक सिपारा मुकम्मल करना था तो उसे पढ़ने में मशगूल हुई कि कुछ होश नहीं रहा। आप चलो, मैं आती हूँ। मारिया महज सर हिलाकर रह गई। उसका अजनबी अंदाज मारिया को आगे बढ़ने ही नहीं देता था। कुरान पाक को गिलाफ में लपेट कर वो 2 पट्टी चप्पल पाँव में पहने मारिया के पीछे आई। चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट सजाए वो खानसामा के साथ टेबल सेट करने लगी। जब आगा जान हॉल में दाखिल हुए थे, मैं जानता था मेरा बच्चा इधर ही मौजूद होगा, इसलिए मैं सबसे पहले आ गया। आगा जान ने मीठी नज़र मुंतहा के उजले चेहरे पर डालकर कुर्सी संभाली थी। जानती हूँ आप मेरे बगैर खाना नहीं खाते। प्लेट में सालन डालकर उसने चपाती आगा जान की जानिब बढ़ाई। पहले मेरा बच्चा, फिर मैं खाऊंगा। उन्होंने एक निवाला मुंतहा की जानिब बढ़ाया। मुंतहा जो ज़िंदगी के मायने भूल बैठी थी, आज सिर्फ आगा जान की बदौलत दोबारा उस ज़िंदगी को जी रही थी। सब कुछ बदल चुका था। खुशियों भरा घराना अब एक वीराने में तब्दील हो चुका था।
कब वापस आओगे? 1 साल गुजर चुका है, लेकिन तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं होते। 1 महीने का कहकर तुम पूरा 1 साल गुजार चुके हो। फोन पर वो मामूल के मुताबिक हमदान को झाड़ पिला रही थी और दूसरी जानिब मौजूद हमदान का पूरा वजूद समात बना उसकी डांट को जैसे सकून समझकर महसूस कर रहा था। ओह भाई, आप नहीं जानते कि आपकी ये डांट मुझे कितना सकून देती है, मेरी सारे दिन की थकन उतार देती है। हमदान का मोहब्बत से भरपूर लहजा गाजान के चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट लाया। बात मत बदलो, बताओ कब आओगे? जब आप मेरी मर्जी से शादी करेंगे तब आऊँगा, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। हमदान, नो मोर बकवास, अंडरस्टैंड? तीखे चतूनों के संग उसने जवाब। जस्ट किडिंग भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमदान ने आंखें मीच कर गहरा सांस लिए बात संभाली। भाई, ये आपका ही तो ख्वाब था कि मैं इंग्लैंड में अपनी कंपनी की ब्रांच ओपन करूं, तो आपका ख्वाब क्या मैं भूल जाऊं? नामुमकिन बात है, इसलिए आपका ये नादान भाई अभी नहीं आ सकता। सो आप भी सब्र का दामन थाम कर रखें। बहुत जल्द आपको तंग करने आऊँगा, फिर आप मुझे वहाँ दोबारा मत भेजिएगा। जानते हो, मॉम बहुत परेशान रहती हैं। तुम भी दूर जा चुके हो और मैं भी मॉम को कोई खुशी नहीं दे पाया। मुझे मलाल होता है कि काश मैं मॉम को उनका सुख दे पाता, लेकिन मैं तो। खैर, तुम बताओ, कंपनी कैसी जा रही है? कोई प्रॉफिट भी हुआ या नहीं? भाई, आप हर रोज़ बात बदल जाते हैं। भूल जाएं कि वो लड़की आपकी किस्मत में थी। हमदान, मैं भूल चुका हूँ और इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। हमदान को यकगु सकून महसूस हुआ, जैसे दिल से भारी बोझ सरक गया हो। चलें भाई, मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम को ज़रूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। रात में आपको मैसेज करके ही सोऊंगा। ओके, अपना ख्याल रखना, मॉम को भी कॉल कर लेना। अलविदाई कलमात अदा करके उसने फ़ोन रखा। चेयर से टेक लगाकर उसने आंखें मूंदी। छम से वो लाल हिजाबी चेहरा आंखों के सामने आया। रोज़े अव्वल की तरह वो चेहरा आंख से ओझल हो ही नहीं पाया। लाख झटकता, लेकिन शायद उस हिजाबी चेहरे को भी जिद हो गई थी कि गाज़ान सिद्दीकी का पीछा नहीं छोड़ना। उस चांद की ख्वाहिश तो वो कब से छोड़ चुका था, लेकिन बेबस दिल किसी दूसरी महरम ज़ात के लिए राज़ी भी तो नहीं था। दिल था कि उस इकलौते चांद का तलबगार था, पर वो चांद शायद उसकी पहुंच से काफ़ी दूर था। उम्मीद पर दुनिया कायम है और मैं भी उसी उम्मीद पर कायम हूँ कि आप कभी ना कभी तो मेरी दस्तरस में ज़रूर आएंगी। यकीन भरे अंदाज में सोचता वो आंखें मूंद गया।